We are studying Canto 1, Chapter 5, Narada's instruction on Srimad Bhagavatam to Vyasadeva, text number 39. So हमारे ये लास्ट के दो श्लोकास रहते हैं इस चैप्टर के, तो विल ट्राई टू रीड देम टुडे. इमां स्वनिगमं भ्रमन् वेत्यामद् अनुस्थितम् आदन्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भवं च केशव. इमं स्वनिगमं ब्रह्मण वेत्यामद् अनुस्थितम् अदन्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भवं च केशव. इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् वेत्यामद् अनुस्थितम् अदन्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भवं च केशव. पूजा माता जी पढ़िए. इमं स्वामिकं ब्रह्मन् एव तमद् अनुष्ठितम् अदन्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वसिम्भवं स केशव. आस्था आप पढ़ो. इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेद्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भवं च केशव. Thank you. Word to word meaning. Imam, thus Swanigamam, confidential knowledge of the Vedas in respect to the Supreme Personality of Godhead. Brahman, O Brahmana, Vyasadeva. Evetya, knowing it well, Mat by me. Anusthitam, executed. Adat, bestowed upon me. Me. Jnanam, transcendental knowledge. Aishwaryam, opulence. Swasmin, personal. Bhavam, intimate affection and love. Cha and Keshava, Lord Krishna. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. O Brahmana, thus by the Supreme Lord Krishna, I was endowed first with the transcendental knowledge of the Lord as inculcated in the confidential part of the Vedas, then with the spiritual opulences, and then with his intimate loving service. So क्या बोल रहे हैं नारद मुनि ब्राह्मण को, व्यास देव जी को, कि पहले by the Supreme Lord Krishna, I was endowed first with the transcendental knowledge, ठीक है, then the spiritual opulence, and then the intimate loving service, ठीक है. So पहले तो ज्ञान मिला, फिर spiritual opulence, फिर उसके बाद intimate loving service उनको मिली, ठीक है. So तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे. Communion with the Lord by transmission of the transcendental sound is non different from the whole spirit, Lord Shri Krishna. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो वाणी है, नाम और नामी में भेद नहीं. तो जैसे हम लोग हरि नाम लेते हैं तो भगवान का डायरेक्ट एसोसिएशन हमें मिलता है, ठीक है. दैट इज द साउंड वाइब्रेशन that awakens our dormant Krishna consciousness. It is a completely perfect method for approaching the Lord. तो साउंड से अप्रोच करना, that is the महामंत्र जो हम चैंट करते हैं, ये एक अप्रोप्रिएट मेथड है भगवान तक रीच करने का, उनको रीच करने का, ठीक है. So it's like that's why we chant the holy names. We try to chant it attentively so that we can make a connection with the Supreme Person. By such pure contact with the Lord without offense of material conception. Numbering 10, जैसे जो नाम अपराध है हमारे 10, the devotee can rise above the material plane to understand the inner meaning of the Vedic literatures, including the Lord's existence in the transcendental realm. The Lord reveals his identity gradually to one who has unflinching faith both in the spiritual master and in the Lord. After this, the devotee is endowed with mystic opulences, which are 8 in number. And above all, the devotee is accepted in the confidential entourage of the Lord and is entrusted with the specific service of the Lord through the agency of the spiritual master. पहले तो क्या है, हम नाम जब करते हैं वो हमें नाम अपराध, हमारे 10 नाम अपराध है. Please mute yourself. You are unmuted. Hare Krishna. So पहले तो क्या है, हमें जो जब करना है वो 10 नाम अपराध ना करते हुए करना है, 10 नाम अपराध नहीं करने हैं. So that we can be, तब हम लोग क्या है, टोटली मटेरियल प्लेन से अबव एक स्पिरिचुअल प्लेन ट्रांसेंडेंटल रियल में सिचुएट हो सकते हैं. Then the Lord reveals his identity. किसको? जिसका अनफ्लिंचिंग फेथ होता है, जिसका फ्लैश शेकिंग नहीं होता है, ठीक है. किसमें? गुरु में और भगवान में. जिसमें गुरु और कृष्ण में जिसका पूरा पूर्ण श्रद्धा है, ठीक है, भगवान उसको रिवील होते हैं.
After the devotees endowed with mystic opulences which are 8 in number, तो ये mystic opulence की बात यहाँ पे हो रही है. वैष्णवों में opulences होते हैं. और उसके बाद हम भगवान की सेवा में लगाए जाते हैं गुरु की कृपा से. ठीक है. A pure devotee is more interested in serving the Lord than in showing an exhibition of the power मिस्टिक पावर इन हिम. ऐसे प्रभुपाद के पास भी मिस्टिक पावर्स थी, मगर जो भक्त होते हैं वो मिस्टिक पावर में कभी इतना वो नहीं करते हैं. They are never interested in showing these mystic powers. They are more interested in serving the Lord. Sri Narada has explained all this from his personal experience, and one can obtain all the facilities which Sri Narada obtained by perfecting the chanting process of the sound representation of the Lord. तो जैसे नारद मुनि के पास इतनी सिद्धि आई, he became the साधे से, मतलब वो इतने शुद्ध भक्त बने. ठीक है. He was experiencing the bliss, so that we can also experience. उसके लिए क्या, हमारा जो chanting process है, that should be, उसमें अगर हमारा perfection हो जाता है, so we can automatically be experience the bliss. क्या लिखा है? Perfecting the chanting process of the sound representation of the Lord. साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड. तो ये जो हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये भगवान की साउंड रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. देयर इज नो बार फॉर चैंटिंग दिस ट्रांससेंडेंटल साउंड बाय एनीवन, provided it is received through Narada's representative coming down by the chain of disciplic succession or the parampara system. तो जब कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमें चैतन्य महाप्रभु ने नहीं दिया, मगर हमें ये इसको गुरु परंपरा में लेना चाहिए. क्योंकि जब गुरु परंपरा में लेते हैं, जो कृपा है भगवान कृष्ण से पूरे प्रीवियस आचार्य से होते हुए हम तक आती है, और हम इस हरिनाम को शुद्धता से ले पाते हैं. ठीक है. तो परंपरा में हमें हरिनाम, मतलब एक बोनाफाइड गुरु से दीक्षा लेना है, हरिनाम करना है, then we'll be like properly, we can situate ourselves in chanting the pure names of the Lord. ठीक है. We'll move to the next verse. त्वमपि अभद्रा श्रुतविश्रुतं विभो समापयते येन विदम्बभूत्सितं प्रख्याहि दुःखे मुरार्दितात्मनं संक्लेशनिर्वनं मुशन्ति नान्यथा. अक्षय, तुमने श्लोका नहीं पढ़ा था, पढ़ो. नहीं भाभी, नहीं आनी. अक्षय श्लोका पढ़ो. अपि अदाभ्रा शूद्रा विश्रुत्रं विभो समप्यते येन विधं बुभूत्सितं प्रख्याहि दुःखिकैर्मुहुरदित तन्मनं संक्लेशनिर्वाणम् उसन्ति नन्यथा. Very good. Translation and purport by Srila Prabhupada. Please therefore describe the Almighty Lord's activity which you have learned by your vast knowledge of the Vedas, for that will satisfy the hankering of a great learned man, and at the same time mitigate the miseries of the masses of common people who are always suffering from material pangs. Indeed, there is no other way to get out of such miseries. देखो, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम लोग अपने भौतिक कलमश, ठीक है, सफरिंग या दुखों से निवारण चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है भगवान की हरि कथा का श्रवण करना, उसकी चर्चा करना और हरि कीर्तन करना. ठीक है. तो यहाँ पे नारद मुनि व्यास देव जी को वही कह रहे हैं एंड में कॉन्क्लूड करते हुए कि जितना भी आपने भगवान की एक्टिविटीज के बारे में जाना है वेदास के थ्रू, ठीक है, आप उसकी चर्चा कीजिए, क्योंकि वही चीज है जो ग्रेट लर्नड है उनको सेटिस्फाई करेगा, और सेम टाइम पे जो कॉमन लोग हैं, जो जनरल मास है, ठीक है, लोगों का क्या है, उनकी जो मिजरीज है उनको खत्म करेगा. सो दिस इज द ओनली वे. यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है भौतिक कलमश को मिटाने का. ठीक है. तो ऐसा आदेश दिया नारद मुनि ने, किसको? व्यास देव जी को. Sri Narada Muni from practical experience definitely asserts that the prime solution of all problem of material work is to broadcast very widely the transcendental glories of the Supreme Lord. ठीक है. तो नारद मुनि यहाँ अपने खुद के उदाहरण से बता रहे हैं कि भौतिक जो हमारी जितने भी प्रॉब्लम्स है, एक ही सोल्यूशन है उसका. वो क्या है? तो भगवान के गुणगानों का वर्णन करना, भगवान का गुणगान करना, उनकी एक्टिविटीज, ट्रांससेंडेंटल दिव्य जो पास टाइम्स है, लीलाएं हैं, उनका चर्चा करना,
उनको प्रचार करना, वही चीज उसमें क्या है, इंसान जो है अपने भौतिक कलमश से बच सकता है। देर आर 4 क्लासेस ऑफ गुड मैन, देर आर 4 क्लासेस ऑफ बैड मैन ऑल्सो। ठीक है, 4 प्रकार के लोग हैं जो अच्छे हैं और 4 प्रकार के लोग जो बुरे हैं। 4 क्लासेस ऑफ गुड मैन एक्नॉलेज द अथॉरिटी ऑफ ऑलमाइटी गॉड, देयरफॉर सच गुड मैन। अब जो अच्छे व्यक्ति हैं वो भगवान की अथॉरिटी को एक्नॉलेज करते हैं, नो देयर इज अ सुप्रीम पर्सन। कौन से? व्हेन दे आर, कब कब कर पाते हैं? व्हेन दे आर इन डिफिकल्टी, when they are in need of money, when they are advanced in knowledge, and when they are inquisitive to know more and more about God। तो ये वही 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान को अप्रोच करते हैं। ये हम लोगों ने भगवत गीता में चर्चा किया था कि जो लोग दुखी होते हैं, जिनको पैसा चाहिए, जिनको एब्सोल्यूट ट्रुथ की ज्ञान चाहिए, जो कुछ क्यूरियोसिटी होती है, तो वो भगवान के प्रति जाते हैं। As such, Narada ji advises Vyasadeva to broadcast the transcendental knowledge of God in terms of the vast Vedic knowledge which he has already attained। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपने ऑलरेडी वैदिक नॉलेज आपके पास बहुत है, तो अभी आप क्या कीजिए, इसको चर्चा करो, इसके बारे में बताइए सभी को। ठीक है, और 4 प्रकार के लोग हैं जो ना समझ पाते हैं भगवान के बारे में और ना तो उनको अप्रोच करते हैं। वो कौन से? Those are simply addicted to the mode of progressive fruitive work, those are subjected to accompanying miseries। जो अपने फ्रूटिव कार्य में ही, एक्टिविटीज में ही लगे रहते हैं, ठीक है, गुणों के अधीन होते हैं। Those are simply addicted to vicious work for self satisfaction। Vicious means जो इलीगल कार्य रहते हैं इंद्र तृप्ति के लिए, ठीक है, एंड उसका जो है सफर करते हैं। Those who are materially very much advanced in knowledge but who suffer because they do not have the sense to acknowledge the authority of the Almighty Lord। जिनके पास ऑपुलेंस तो बहुत है, तुम अगर वो स्वयं को ही भगवान समझ लेते हैं, प्रोप्राइटर समझ लेते हैं, तो भगवान की अथॉरिटी को नहीं ले पाते। चौथी क्लास के लोग हैं नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग, जो नास्तिक है, नास्तिक लोग हैं, जो कि भगवान को पर्पसली नफरत करते हैं उनसे। ठीक है, तो इसलिए उनको भी कभी बहुत डिफिकल्टी रहती है। ठीक है, तो श्री नारदा एडवाइज्ड व्यासदेव टू डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड जस्ट टू डू गुड टू ऑल 8 क्लासेस ऑफ मैन, बोथ गुड और बैड। तो इन जो 8 प्रकार के लोग हैं, जो बुरे और अच्छे हैं, इन सबका भला हो, तो नारद ने बोला कि भगवान की ग्लोरीज गुणगान कीजिए। तो श्रीमद् भागवतम is therefore not meant for any particular class of man or sect, it is for the sincere soul who actually want his own welfare and peace of mind। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, कोई बोले कि ये हिंदुओं के लिए है, तो ऐसा नहीं है, ये ब्राह्मणों के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हर एक उस सिंसियर सोल के लिए है जो अपना भला चाहता है और मन की शांति चाहता है, जो आगे प्रगति करना चाहता है और इस भौतिक कलमश से दूर होना चाहता है, उसके लिए श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम केवल एक हिंदू और एक ब्राह्मण इसके लिए नहीं है, ये सबके लिए है, जो भी एक सिंसियर सोल शांति चाहता है, अपना भला चाहता है, ये उसके लिए। ठीक है, so thus ends the Bhakti Vedanta purport of the first canto, 5th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Narada's instruction on Srimad Bhagavatam for Vyasadeva। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है आज। बाकी का जो नया चैप्टर वो हम कल पढ़ेंगे, आज अभी हम लोग फर्दर मोर डिस्कशन वी विल डू। ये जो 10 नामा अपराध की बात की गई थी कि प्योरली हमें चैंटिंग करना चाहिए, तो ये एक जो लेक्चर का ट्रांसक्रिप्शन मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज का, ठीक है, जो उन्होंने आबू धाबी में दिया था 29 नवंबर को और 3 दिसंबर को 2007 में। ठीक है, इसका टाइटल है ज्यूल्स ऑफ विजडम। सो ये 10 नामा अपराध के बारे में इसमें महाराज बताते हैं, तो लेट अस ऑल रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पहला जो नामा अपराध है वो है, लेट मी ओपन अप फॉर ऑल ऑफ यू इन द क्रोम सो दैट यू ऑल कैन रीड आउट। ठीक है, 10 offenses to the holy name। तो पहला नामा अपराध है टू ब्लास्फेम द डिवोटीज। आप लोगों को दिख रहा है ये? 1 सेकेंड, स्क्रीन थोड़ा बड़ा करो। दिख रहा है सभी को? अभी दिक्कत तो नहीं है कुछ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सबको दिख रहा है? प्लीज से यस और नो। माता जी। ओके, यस माता जी। ओके, सो पहला नामा अपराध क्या है? पढ़िए पूजा माता जी, क्या लिखा है? पढ़िए। To blaspheme the devotee who have dedicated their life for propagating the holy name of the Lord। हाँ, तो ऐसे भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना पूरा जीवन हरि नाम के प्रचार हेतु समर्पित किया है। ठीक है,
तो ये पहला नामा अपराध है। तो इसके लिए क्या बताया जा रहा है, महाराज कहते हैं डिवोटीज डू नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बाय डूइंग दिस वी सेव हाफ आवर लाइफ। When two people meet, we always have the tendency to talk about and criticize the third one, and this has to be avoided. ठीक है, जब हम किसी को निंदा करते हैं तो हमारा आधा जीवन हम ऐसे ही खत्म कर देते हैं, पता है आपको। तो बोला कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, किसी के बारे में बात करेंगे, किसी थर्ड पर्सन की निंदा करेंगे, तो जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो भागवतम महात्म्य 480 में ऐसा एक वर्स है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। Every one of us should remember this always in order to get out of the pitfall of criticizing others. तो यहाँ पे क्या लिखा है, धर्मम भजस्व सततम त्याज लोका धर्मना सेवा सा साधु पुरुषं जहि कामा तृष्णनान् अन्यस्य दोष गुणा चिंतनम अशुमुक्तवा सेवकथा रसम अहो नित्रम पिबात्वम। क्या लिखा है, धर्मम भजस्व सततम, मतलब one should always focus and speak about dharma। देखिए ये ऐसा क्यों होता है, ब्लास्फेम डिवोटी मतलब एक मनुष्य में एक क्या है, प्रवृत्ति है कुछ बात करने की, ठीक है, किसी के बारे में बात करने की, ये हमारा होता है, कोई बात होती है किसी के बारे में ही बात करते हैं ना, ऐसे तो नहीं बात करते हम कुछ भी, तो ये नॉर्मल नेचुरल है। तो क्या बोला, अगर किसी के बारे में बात करनी तो हमें क्या फोकस करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज धर्माम भजास सततम, वी शुड ऑलवेज फोकस एंड स्पीक अबाउट धर्मा। Here, the verb bhajasva indicate an order and it is not a request. Dharma refers to religion that links us to the supreme personality of Godhead. तो धर्म क्या है, जो एक जीवात्मा को भगवान के साथ लिंक करवाता है। We are all eternal servant of the Lord and this dharma is our constitutional position. हम भगवान के नित्य दास हैं, यही हमारा constitutional position है। Every part has to serve the whole. The soul which is part and parcel of Supreme Lord can never survive on its own. That is why the super soul never leaves the individual soul. तो soul है, देखिए जो भी अंश है, अभी like our body parts are there, तो body parts are meant to serve the whole body, ठीक है, और जीवात्मा अकेले में कुछ कर नहीं पाते, तो इसलिए सुपर सोल कभी भी इंडिविजुअल सोल को अकेला नहीं छोड़ते। If every soul is part and parcel of Krishna, we have no right to criticize anyone. अब देखिए अगर हर जीवात्मा भगवान का अंश है तो क्या हमें ये हक मिलता है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें, निंदा करें? नहीं मिलती। अगर हम लोग हर एक आत्मा, देखिए भगवान से रिलेटेड है ना, ऐसे राधानाथ महाराज का एक कोट था कि अगर हम लोग किसी एक व्यक्ति से हेट करते तो कहीं ना कहीं हम भगवान को हेट करते हैं, क्योंकि भगवान की क्रिएशन है ना, तो अगर किसी को हेट करे तो उन्हीं को करे, क्योंकि उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है उस प्रकार से, ठीक है। So this is the practical application of knowledge. Unless the knowledge is realized and applied, it becomes mere speculation. तो ज्ञान जब तक रियलाइज नहीं है, अप्लाई नहीं किया जाता, वो एक स्पेकुलेशन मन के उसी पे रहते, स्तर पे रहती है। तो ये हमें जानना है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं नहीं, सभी भगवान के अंश हैं, तो मैं फिर निंदा नहीं कर सकता किसी की, क्योंकि वो अपराध हो जाएगा भगवान के प्रति, ठीक है। तो यहाँ बोला है मेंशन सततम, विच मीन्स दैट द रिलीजियस प्रिंसिपल हैव टू बी प्रैक्टिस्ड ऑल द टाइम। सततम मतलब पहली बात तो धर्म के बारे में बात कीजिए, दूसरा रिलीजियस प्रिंसिपल को हमेशा प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, अ ग्रेन ऑफ प्रैक्टिस इज मोर वैल्यूएबल देन टन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, ग्रेन ऑफ प्रैक्टिस इज मोर वैल्यूएबल देन टन्स ऑफ नॉलेज, कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने से कोई मतलब नहीं है, अगर आप उसका 1% भी अगर आप प्रैक्टिस कर पाए तो वो ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। बाय नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी वी आर ऑब्जर्विंग द ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। किसी की निंदा ना करने से हम क्या कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। हम लोगों ने उपदेशामृता में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम उदार पस्त वेगम। तो हम लोगों ने वाच वेगम पढ़ा था, वाच वेगम मतलब जीभा का वेगम, लाइक स्पीच, कंट्रोलिंग द स्पीच। तो ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है कि किसी की निंदा नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो स्पीकिंग इज अ वेरी इजी एक्टिविटी एंड दैट इज व्हाई वी क्रिटिसाइज, क्योंकि बोलना बड़ा आसान है, इसलिए हम किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। Our body is so formed that we can see only others' face and we cannot see our own face. हमारा शरीर अब इस तरीके से बना है, हम सामने वाले को ही देख पाते मगर खुद को नहीं देख पाते। अब मिरर दिखेगा तो देख पाएंगे, ऐसे तो खुद को नहीं ना देख पाते हम लोग। अभी मेरे सामने स्क्रीन है, कैमरा ऑन है, तो मैं अपने आप को इस ये जो छोटा सा फोटो है उसमें अपने आप को देख पा रही हूँ, बट जनरली हमारी बॉडी ऐसी वो हम खुद को नहीं देख पाते,
है ना, तो इसलिए हमें अपने खुद के दोष नहीं दिखते. सो वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर ओन डिफेक्ट एंड वी टॉक अबाउट अदर्स. इसीलिए हम लोग अपने दोषों को ना देखते दूसरों को दिख जाते तो उन्हीं की बातें करते रहते हैं. सो बाय ऑलवेज परफॉर्मिंग द रिलीजियस प्रिंसिपल वी अवॉइड दिस पिटफॉल. तो इसीलिए हमेशा धर्म के जो धर्म को पालन करते रहेंगे तो हम लोग ये जो ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच को इसको पालन कर पाएंगे और पहले नाम अपराध से बच पाते हैं. ठीक है, तो पहला नाम अपराध क्या आ जाता है? ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच. ठीक है, आगे ये पहला पॉइंट ही है तो इसी पे हम लोग थोड़ा चर्चा है. ठीक है, सो ये जो श्लोक है यहाँ पे था उसी में था. आगे बताया त्यज लोका धर्मान, वी शुड अबंडन द जनरल मीनिंग ऑफ रिलीजन. पीपल आर रनिंग आफ्टर सो मेनी डेमिगॉड, other living entity and so many rituals without actual knowledge of real religion which is to glorify the super soul. ठीक है, तो सभी लोग देवताओं के पीछे भागते हैं, जीवात्माओं के पीछे भागते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि रियल रिलीजन क्या है? भगवान को ग्लोरीफाई करना. ठीक है, here again the verb त्याज indicate order to abandon and is not a request. Time is running out and we should not be running after false things. We either use the time or lose it. ठीक है, तो हमें क्या करना है? समय बहुत कम है तो समय को सही से इस्तेमाल करना है. We should not use it to criticize or talk about other people, but we should use it to glorify the Lord. ठीक है, we should serve the sadhus. अब ये जो पहला ही है इसी का ही निवारण बता रहे. पहला ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, दूसरा भगवान को ग्लोरीफाई करो. तीसरा पॉइंट आ जाता है we should सेवा स्व साधु पुरुषाम, we should serve the sadhus. यहाँ पे भक्तों की निंदा की बात आ रही है तो हमें ये करना है, वैष्णवों का सेवा करना है. कैसे? All through our life we are serving our mind, greed, envy, our wife, children, everything else other than Krishna. अपने पूरे जीवन में किसकी सेवा करते हैं हम? मन की. ठीक है, अपने ग्रीड की, पत्नी की, बच्चों की. ठीक है, मगर कृष्ण की सेवा नहीं करते. We should serve the sadhus who are simple people who have taken shelter of Krishna. तो हमें साधु की सेवा करनी है जो सरल लोग हैं और जो भगवान को पूर्णतः समर्पित हैं. A sadhu is a renounced person, but we should that renunciation is not only, but हमें ध्यान देना चाहिए कि renunciation not only showy fervor, but the actual realization must be there that everything here is temporary. तो renunciation भी false नहीं होना चाहिए. हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं कि फाल्गु वैराग्य क्या होता है? सब माया माया माया, मगर अंदर से मेडिटेट करते हैं उसी पे. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, we should always seek the association of the sadhus. So यहाँ पे 3 चीजें हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो प्लीज नोट कीजिए. ये जो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अगर आप लोग इसके पॉइंट्स नोट करोगे तो आपको बहुत ध्यान में रहेगा कि पहला चीज है उससे बचने के लिए, पहला अपराध से बचने के लिए ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड. ठीक है, टेकिंग द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज. सो दिस इज, यहाँ पे 3 चीजें हैं. पहला आता है संग. संग का मतलब होता है एसोसिएशन, और सत्संग का मतलब होता है गुड एसोसिएशन, और प्रसंग का मतलब होता है प्रभु, लॉर्ड्स एसोसिएशन. प्रभु संगा इज प्रसंगा. तो 3 संग है. पहला संगा एसोसिएशन, सत्संगा गुड एसोसिएशन, तीसरा प्रसंगा एसोसिएशन ऑफ द प्रभु मींस लॉर्ड्स एसोसिएशन. वी शुड ऑलवेज सीक प्रसंगा, हमें प्रसंग लेना है. इन श्रीमद् भागवतम First Canto 19:16, King Parikshit prefers this prasanga when he prays Rati prasangascha ashrayeshu. Krishna consciousness flows from one living entity to another, and this is the value of prasanga. Krishna consciousness flows from one living entity to another. This is the value of prasanga. प्रसंग प्रभु एसोसिएशन, मतलब अगर आपने प्रभु का संग लिया है तो मतलब आपकी कृष्ण भावना दूसरे व्यक्ति में जाएगी. मतलब आपका इतना इन्फ्लुएंस रहेगा कि आपको देखने मात्र से ये दूसरे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत महसूस करेगा. दिस इज प्रसंग. तो हमें सिर्फ संग सत्संग के लिए नहीं जाना. वी हैव टू लुक फॉर प्रसंग, प्रभु संग. कि आप किसी का भी संग करें, यू आर एबल टू फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा. यू शुड फील कृष्णा कॉन्शियस. ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला कि हमें एसोसिएशन लेने में बहुत ही चूजी होना चाहिए. कैसे? कि जहां हम अपने आप को अपलिफ्टेड महसूस कर सकें, जहां महसूस करें कि मैं कृष्ण के प्रति और आगे बढ़ रहा हूँ या भक्ति में और आगे बढ़ रहा हूँ, हमें वो संग लेना चाहिए. दैट इज कॉल्ड प्रसंग. तो 3 संग है, उसमें कहाँ हमें लेना चाहिए? प्रसंग लेना चाहिए हमें. ठीक है, सो यहाँ लिखा है बाय दिस प्रसंग वी सेव आवर्स फ्रॉम पिटफॉल ऑफ क्रिटिसिज्म. ऐसे संग से हम
ये जो क्रिटिसिज्म वाले टेंडेंसी से बच सकते हैं, क्योंकि प्रसंग प्रभु संग लिया होगा तो हमेशा प्रभु के बारे में बात करेंगे ना, कृष्णा के बारे में बात करेंगे, कुछ और बात रहेगी बात करने को नहीं, ठीक है। सो एनी टॉक अदर देन दी अबाउट कृष्णा अफेक्ट आवर ब्लड सर्कुलेशन एंड हैम्पर आवर डिवोशनल सर्विस। जब हम भगवान के बारे में चर्चा नहीं ना करते तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट होता है, साइंटिफिक है ये। इफ आवर गोल इज कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा देन आवर टंग इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल। जब हमारा गोल कृष्णा है तो हमारी जीवा अपने आप कंट्रोल रहती है। The more we concentrate on the pages of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, the less we talk about others. अब ज्यादा से ज्यादा हमने भागवतम पे चर्चा करेंगे, भगवद गीता पे ध्यान होगा, तो कोई व्यक्ति मिलेगा तो क्या चर्चा करेंगे हम। आपको पता है आज मैंने भागवतम पढ़ा, नारद मुनि व्यास देव जी को बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक कलम से बचना चाहता है तो उसको भगवान के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पॉइंट है कि नहीं? आप ये किसी व्यक्ति को बताओगे कि नहीं कि भाई देखो, अगर तुम अपने भौतिक कलम से बचना चाहते हो तो भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करो, उनका हरि नाम लो। चर्चा की बात है कि नहीं? अगर आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा तो, है ना। अगर भगवत गीता पढ़ी होगी तो आप उसके बारे में चर्चा करोगे, आपने जो पढ़ा होगा उसके बारे में चर्चा करोगे। अब आपने अगर ध्यान दिया ही नहीं होगा तो आप क्या चर्चा करोगे? यार वो माता जी पता नहीं क्या ऐसे ही सुबह सुबह बोलते रहते हैं, क्लास लेते हैं, समझ तो कुछ आता नहीं, बोले नहीं, तो यू विल बी टॉकिंग समथिंग बैड। अगर आपने कुछ अच्छा नहीं सीखा तो यू विल टॉक अबाउट समथिंग बैड। कुछ अच्छा नहीं होगा तो यू विल टॉक अबाउट समथिंग, यू विल क्रिटिसाइज समवन, तो कुछ बुरा ही बोलोगे आप। तो इसीलिए हमें वी हैव टू पे अटेंशन टू द पेजेस ऑफ भागवतम एंड भगवद गीता, ठीक है। सो क्या बोले, द इफ इन प्रसंग वी रिलिश हिज एसोसिएशन एंड दिस ब्रिंग्स अस सैटिस्फैक्शन। और प्रसंग में हम भगवान की चर्चा करते हैं तो हम भगवान का संग की रिलिश कर पाते हैं और वो हमें संतुष्ट करता है, ठीक है। Does our health definitely depend upon 100% कृष्णा consciousness? तो अगर आपको अपनी हेल्थ में कहीं ना कहीं कमी दिखती है ना, हेल्थ में प्रॉब्लम दिखता है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम भगवान कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। हम जितना कृष्णा कॉन्शियस होंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। नेक्स्ट आ जाता है वी हैव टू स्टॉप ऑल मटेरियल डिजायर्स। तो हमें भौतिक इच्छाएं जो है वो छोड़नी है, ठीक है। जैसे भगवद गीता 339 में लिखा है, अवर्तम ज्ञाननम इतेना ज्ञानिनो नित्यवेरिना कामरूपेण कौन्तेया दुष्पर्णेन नलेन च। The wise living entities, pure consciousness, become covered by the eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied, which burns like fire. कि जो शुद्ध आत्मा है उसकी जो शुद्ध चेतना वो किससे कवर होती है? लस्ट से, ठीक है। जो क्या है कभी संतुष्ट नहीं होती और अंदर आग की तरह जलती रहती है, ठीक है। बर्निंग लाइक फायर डिमांड्स मोर फ्यूल। लस्ट जो काम वासना है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती और ज्यादा डिमांड करती है। डिवोशनल लाइफ मींस ऑल ट्रांसेंडेंटल एंड हेंस ऑल द मटेरियल डिजायर्स हैव टू बी गिवन अप। तो जब हम डिवोशनल लाइफ में तो हमें अपनी भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी है, ठीक है। आगे लिखा है वी शुड नॉट थिंक अबाउट अदर्स बैड एंड गुड क्वालिटीज। हमें दूसरों के बुरे और अच्छे गुणों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन आवर ओन बैड क्वालिटीज। हमें दूसरों के बुरी चीजों में मेडिटेट नहीं करना मगर अपने बुरे पे मेडिटेट करना है, ठीक है। ट्राई टू इम्प्रूव आवर क्वालिटीज एंड बिहेवियर। आवर माइंड आर ऑलवेज वंडरिंग थिंकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स। वी हैव ऑलरेडी वंडर्ड थ्रू 84 lakhs। हमारा मन हमेशा इधर उधर भटकता है, ठीक है, मगर ऑलरेडी 84 लाख में बहुत धक्के खाए हमने, बहुत वंडर किया है, ठीक है। बट नाउ even क्या बोले 84 lakh of species completing at least one round, but even now our mind wanders. We should stop this wandering of the mind. तो इस मन का जो इधर उधर भागता है उसको छोड़ना चाहिए। 84 लाख में तो वंडर कर चुके हैं ना, now stop wandering. लास्ट आता है we should drink regularly the nectarian juice of Krishna's stomach. क्या so many times we say the Bhagavad Gita is not different from the Lord, but again we do not focus on Bhagavad Gita. बहुत बार बोलते हैं भागवतम भगवद गीता भगवान से भिन्न नहीं है, मगर फिर भी हम उसमें attention नहीं पे करते। We talk so many other things. We have to change our nature and habituate ourselves to studying the scriptures. Pribhatvam means you drink, which means that we should seclude ourselves from 1 or 2 hours and read and understand the scriptures. अपने आप को 1-2 घंटे के लिए सब चीजों को छोड़ के भागवतम और भगवद गीता को पीना चाहिए, मतलब उसको पढ़ना चाहिए। Conclusion is for our health we should stop criticizing. हम अपने हेल्थ के लिए क्रिटिसाइजिंग हमें छोड़ना है। तो ये पहले नामापराध की चर्चा हम लोगों ने की, समय है नहीं, दूसरा नामापराध कल थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। सो पहले अपराध से बचने के लिए दैट इज निंदा करना वैष्णवों की जिन्होंने अपना जीवन हरि नाम के प्रचार हेतु डेडिकेट किया है। पहला क्या आता है, वी शुड ऑलवेज फोकस
एंड स्पीक अबाउट द धर्मा। और धर्मा क्या है कि मैं दास हूँ, भगवान की सेवा करना, अपने आप को लिंक करना, ठीक है। दूसरा आ जाता है वी शुड अबंडन द जनरल मीनिंग ऑफ रिलीजन, मतलब कि टाइम बहुत कम है, तो ये इधर उधर देवताओं की, इधर इसकी बात करनी, उसकी बात करनी, इन देवताओं की बात करना, वो छोड़ दीजिए। केवल क्या करना है, समय कम है, भगवान का गुणगान करो। तीसरा आ जाता है वी शुड सर्व द साधुस, साधुस की सेवा करनी है। मैं किन साधुस की, जो पूर्णतः शरणागत है भगवान की, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। 3 प्रकार के संघ है, एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन और प्रभु संगा। सो हमें क्या लेना है, प्रसंग लेना है, प्रभु संगा, जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे भक्तों का संग कीजिए जहां से ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत बनते हैं। और प्रभु संगा का असर ये दिखता है कि आप कृष्ण भावनामृत दूसरों को भी देने का सोचते हो कि मैंने ये सुना आज, मैं इसकी चर्चा करूं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, एंड वी रिमेन हेल्दी। चौथा पॉइंट आ जाता है वी हैव टू स्टॉप ऑल मटेरियल डिजायर, तो भौतिक इच्छाएं छोड़नी है, वो छूट जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, निंदा नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। और तीसरा आ जाता है वी शुड नॉट थिंक अबाउट अदर्स बैड, हमें किसी के बुरे क्वालिटीज को मेडिटेट नहीं करना है, बल्कि अपने में दोष देखना और उसको सुधारना है। छठा आ जाता है वी शुड ड्रिंक रेगुलरली द नेक्टेरियन जूस ऑफ कृष्णा's टॉपिक, ठीक है। तो भगवान कृष्ण से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उसको भागवतम, भगवत गीता भगवान से भिन्न नहीं है, तो उनको श्रवण करना है निरंतर और उनके बारे में चर्चा करनी है। तो ऐसा करने से ये जो पहला नामापराध है, इससे हम बच सकते हैं, ठीक है। दूसरा नामापराध की चर्चा हम कल करेंगे भागवतम श्लोका के बाद में, ठीक है। सो यस, अभी अगर किसी के कोई प्रश्न रहा हो या कोई चीज ना समझ में आई, अगर मैंने कोई चीज जल्दी जल्दी में बता रही हो, तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू इन मोर डिटेल। हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ कहना है या कुछ बोलना है तो प्लीज बताइए। आज हम लोग ये 5वां चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें नारद मुनि ने बहुत एम्फसाइज किया भागवतम की गुणगान के बारे में, भगवान की गतिविधियों के बारे में चर्चा के लिए। तो ये देखिए कि अगर हम इसको अपने जीवन में भी उतारें तो हमारा जीवन कितना सफल हो सकता है। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है या किसी कोई डाउट है या कोई कुछ आप कहना चाहें? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। If nothing, please say yes or no so that I can stop the class. हरे कृष्णा। नो माता जी से। ओके, आपको समझ में आया पूजा माता जी क्या पढ़ा हम लोगों ने? जी माता जी। ओके, यस आस्था माता जी। ओके, अक्षय हैज नथिंग। ओके, आप लोगों को समझ में आया जो हम लोगों ने पढ़ा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हरे कृष्णा। Did you all understood what we studied today? Yes, माता जी। Okay. आस्था माता जी, आपको समझ में आया? यस माता जी। Okay. Hope it was not boring. बोरियत ना हुई हो, आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो। जैसे बड़ा कि इतनी ज्यादा नॉलेज गैदर करने से कोई मतलब नहीं है, इवन अ ग्रेन भी अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा जो हम लोगों ने सुना, सो दैट इज मोर वैल्यूएबल। सो ट्राई टू प्रैक्टिस, दैट विल हेल्प, ठीक है। So we'll stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे रामा हरे Rama रामा Hare राम Hare. रामा Hare Krishna, हरे कृष्णा Krishna कृष्णा Hare Hare, कृष्णा हरे हरे Rama हरे रामा Rama रामा Hare. राम रामा हरे Hare हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्णा हरे Hare हरे Rama हरे रामा Rama Rama, Hare राम Hare. रामा हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय, all the somebodies की जय। Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna everyone. हरे कृष्णा।